कहाँ थे हम लोग? क्या कर रहे थे? Maxwell's right hand thumb rule we Maxwell's have right hand thumb rule we had done. Any doubts? So next, I had told you that we have very important topic, magnetic field pattern due to different current carrying wire. Actually, I had discussed it that whenever we change the shape of the conductor, the pattern of magnetic field gets also changed. So there are three this type of shapes. First, straight current carrying wire, second, circular loop, and third, solenoid. Today we will be discussing about straight current carrying wire and circular loop, and on the next day we will do the solenoid, and thereafter electromagnet and all. So first topic you will have for today, magnetic field pattern due to different shapes of current carrying conductor. Second, magnetic field pattern due to straight current carrying wire. Third, factors, magnetic field pattern due to straight current carrying wire. Third, factors on which strength of magnetic field pattern, magnetic field produced by a straight current carrying wire depends. Write it down. First, magnetic field pattern due to different shapes of current carrying conductor. Second, magnetic field pattern due to straight current carrying wire. Third, factors on which strength of magnetic field produced by a straight current carrying wire depends. Yes, sir, लिख लिए हैं sir. Next, magnetic field pattern magnetic field pattern due to a current carrying circular loop. Factors on which factors on which strength of magnetic field produced due to a current carrying
circular loop depends. And last one, what is clock rule? Have you written? Yes, sir. Okay. So fourth topic for today, magnetic field pattern due to current carrying circular loop. Fifth one, factors on which strength of magnetic field produced due to a current carrying circular loop depends. Factors on which strength, and last one, what is clock rule? So first topic we have for today, magnetic field pattern produced by different shapes of current carrying conductor. As I had discussed that whenever we change the shape of magnetic field, shape of conductor, the magnetic field produced gets also changed. Suppose this is wire. So if we take this wire and if we flow current through it, this is, then if we flow current through it, means if we connect it through a circuit, then it will produce a magnetic field around it. Its shape will be different from, means this pattern will be different from the pattern produced by a circular loop. Means suppose the same wire, the same straight wire, if we convert this wire in a circular loop in this way, this is circular loop in this way. So if we convert it in a circular loop, its pattern will be different. And if we convert it in a solenoid, means round, however, it's very difficult to make it from this. So in this way, then the pattern will be different. So actually what I am saying in the first topic, we need to know only that there are three different shapes of conductor, and whenever I talk conductor, it means it will be wire. Means generally we are talking that the wire used in a circuit or the conductor used in circuit. So three shapes are there. First, straight current carrying wire. Second, circular loop. And third, solenoid. So these are the three shapes, and whenever we change the shape of the current carrying conductor, the magnetic field pattern will also get changed. So this is straight current carrying wire, this is circular loop, and this is solenoid. Today we will do straight current carrying wire and circular loop, and solenoid will be done in the next class. In boards, these questions have been asked frequently. They will say to you that draw a magnetic field pattern due to straight current carrying wire. They can ask to you, draw a magnetic field pattern produced by a circular loop. They can ask you, draw a magnetic field pattern due to solenoid. They may also ask to you that write the two factors on which strength of magnetic field produced due to a straight current carrying wire depends, or write the two factors or three factors on which strength of magnetic field pattern produced by a circular loop. Or they may ask that write the three factors on which the strength of magnetic field produced by a solenoid depends. So these topics are very important if we talk about boards, and definitely these are in your syllabus. So first we will be discussing about straight current carrying wire. Means first you need to understand the question what we are going to discuss. We are just going to discuss that if you have this straight current carrying conductor, or a straight current carrying wire, as we all know that whenever there is current, whenever there is flow of electric current through any conductor or wire, there is production of magnetism. Magnetism means what? There is magnetic field. So if there is magnetic field, what is its shape? Is that of butterfly? Is that of circular? Is that of rectangle? Is that of triangle? That is the thing we are going to discuss, and we will be discussing that whenever we change the shape. The first thing what I was discussing today, whenever we change the shape, the pattern gets also changed. So first topic we have is that if we have a straight current carrying wire, definitely it has, if it has direction as upward direction, then it has been observed by experiment. What experiment has been done, I'll discuss you later today itself. Whenever we pass current through this conductor, we have observed that the magnetic field pattern is in this shape. Which type of shape it is? It is
circle, concentric circles. Concentric circles means the center is same but radii are different. Here it has been found that there is the shape of magnetic field pattern due to a straight current carrying wire is concentric circles and which center lies on wire. आप देखो इस सर्कल का भी सेंटर जो है वो वायर पे ही लाई करेगा, इसका सेंटर जो है वो वायर पे लाई करेगा, इसका सेंटर भी जो है वो वायर पे लाई करेगा, और ऐसे ऐसे आप बना सकते हो. एंड जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना लिए, जैसे ही आप शेप स्केच कर लिए, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज होगा, मैं डे 1 से डिस्कस कर रहा हूं, जिस तरीके से करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब हम इसका डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लास्ट डे हम लोग सीख चुके हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो आप अपना राइट हैंड को लीजिए इस तरीके का, इस शेप में, मुट्ठी वाले शेप में, और आप थंब को इस डायरेक्शन इस तरीके से रखें. अगर आप ये इमेजिन करते हैं कि थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है, तो मूवमेंट ऑफ रेस्ट फिंगर जो होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर आपका हाथ उल्टा कर ले, मींस डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे हो जाए, तो फिर ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. वैसे ही अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. मींस कि अगर आपको, चूंकि हम सबको पता है, हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना. मतलब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट की वजह से हो रहा है. तो करंट की वजह से हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो होगा वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा. इनफैक्ट अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ वी टेक the direction of thumb as the direction of electric current, then the direction of movement of rest finger will show the direction of magnetic field. तो अब इस डायग्राम में आप देखो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो थंब को आप ऊपर की तरफ ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, तो ये मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रेस्ट फिंगर्स है, मींस ये वाला. क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है. तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ये है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होता है उसका शेप कैसा होता है, और ऑप्शन होगा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, रेक्टेंगुलर शेप और ट्रायंगुलर शेप. तो आपको बताना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. और इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल आप लगाते हैं? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. क्या है पता है. और ये देखिए कि अगर डायरेक्शन आपका करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो जो शेप बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा. लगे हाथ. ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन हम डाउनवर्ड कर दें तो फिर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्रोड्यूस होगा शेप तो वही होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. लेकिन अब इसका जो डायरेक्शन होगा आप देखो, ये नीचे, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ. दिस इज कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. तो बाकी चीजें सेम है, मतलब शेप चेंज होगा डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने पर, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा. एंड दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. आगे हमें यह सीखना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो स्ट्रेंथ है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता है और उसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है कि किसी भी मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वो सेक्टर, वो क्षेत्र, वो एरिया जहां पे उसके मैग्नेटिज्म को फील किया जा सके. तो अब अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था और इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये अलग बात है कि ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है
वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, मतलब करंट की वजह से। यही तो हमारा चैप्टर है, हम करंट से मैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, करंट को मैग्नेटिज्म से कनेक्ट कर रहे हैं, करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और चैप्टर के लास्ट में हम लोग मैग्नेटिज्म से करंट भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मैग्नेट आपका जो आ रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके चारों तरफ है, इसका मतलब कि ये मैग्नेट है। तो अब ये मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, यही तो फील्ड है। आप याद करो, इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको यही बताया गया था ना कि आपके पास अगर ये पेन है या कॉम्ब है, आप इसको हेयर में रब करोगे और पेपर क्लिपिंग के पास ले आओगे, नजदीक ले आओगे, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। और आंसर बताया गया था, इसका बताया गया था रीजन कि इसके चारों तरफ इसमें चार्ज आ चुका है और चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पेपर क्लिपिंग को ले आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये बात भी डिस्कस किया गया था कि अगर आप कितना भी रब कर लो और अगर आप पेन को यहां रखोगे, कॉम्ब को यहां रखोगे और हेयर सॉरी पेपर क्लिपिंग को यहां रखोगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका अपना क्षेत्र है, अपना रीजन है, अपना एरिया है जहां पे इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है, और उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेम चीज अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ अपना एरिया होगा, अपना फील्ड होगा, अपना रीजन होगा, और वहीं पर इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है। मतलब आप यहां पे मैग्नेट लाएंगे तो ये अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। क्या बहुत दूर रखेंगे मैग्नेट को तो ये अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। तो इससे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर तो यही है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चा वाला बात है, कोई भी समझ सकता है कि आप करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेफिनेटली करंट अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, मैग्नेटिज्म पावरफुल होगा, और अगर करंट का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगा, मैग्नेटिज्म जो होगा वो वीक होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ देयर इज 10 एम्पियर ऑफ करंट इन अ वायर एंड इफ देयर इज 100 एम्पियर ऑफ करंट इन अ वायर, वेयर विल बी द मैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्गर? Definitely the wire in which 100 ampere is flowing. It is very simple, as current is means sorry not current, magnetic field is directly proportional to current flow. And the second factor on which the magnetic field depends is the distance. It is very simple, as we have discussed in the Coulomb's law, that actually Coulomb's law states that whenever we increase distance, the force of attraction or repulsion decreases, and whenever we decrease distance, the force of attraction or repulsion increases. Same thing happens here. However, it is not just I'm saying it is not inversely proportional to the square of the distance, it is inversely proportional to the distance. Means I'm saying if we increase distance, the magnetic field will be decreased, means the magnetic field will be less, and if we decrease distance, the magnetic field will be more. And here, if I am saying magnetic field, I mean the strength of magnetic field, I mean the magnitude of magnetic field. So what I am saying, if you have two points, point A and point B, and if someone asks you that where is the magnitude of magnetic field produced by this PQ straight current carrying wire, and please remember it has been connected to a circuit. I have not drawn it, but it is connected to a circuit. हवा में करंट फ्लो नहीं करने लगेगा, ये सर्किट से कनेक्टेड है, 3D डायग्राम। तो कहां पे करंट मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा? पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा या पॉइंट बी पर? डेफिनेटली पॉइंट ए पर होगा, क्योंकि ये वायर के नजदीक है, तो यहाँ मैग्नेटिज्म। इनफैक्ट एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर मैग्नेटिज्म बहुत ही वीक हो जाए, वही चीज जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि कॉम्ब को रब करके और यहाँ पे ले आते थे तब अट्रैक्ट करता, बहुत दूर रखेंगे थोड़ी ना करेगा। तो यहाँ पे आयरन नेल लाएंगे तो आपको मैग्नेटिज्म फील होगा, आप आयरन नेल 30 किलोमीटर दूर रखेंगे तो थोड़ा ना फील होगा। सो टू फैक्टर्स आर देयर ऑन विच the strength of magnetic field produced by a straight current carrying wire depends. First, it is directly proportional to electric current, and second, it is inversely proportional to distance. So these two factors are very important. So now we have to discuss about the current carrying the magnetic field pattern produced by a circular loop. And here, if we sketch the diagram for circular loop, we actually draw in this way and current flown through it. I'm not connected it through circuit, it is connected through a circuit. And what I'm going to say, that if we imagine that this is North Pole and this is South Pole,
here what you are supposed to do, the right end will go upper side and the left will go to downside. Means I am saying that please take this right hand side as upper end and left hand side as lower end. And what I will actually do, I will sketch the magnetic field pattern by the help of a law known as clock rule. कुछ चीजें इतनी स्पेशल और इतनी खास होती हैं. देखो लेटर एन जो है ना, ये खुद में कुछ बता रहा है आपको, और लेटर एस जो है ये भी खुद में कुछ बता रहा है. ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है. थोड़ा एन को स्टाइलिश करते हैं ऐसे, और एस को भी थोड़ा स्टाइलिश कर देते हैं ऐसे. अभी भी नहीं समझ में आ रहा है. इसके चारों तरफ सर्कल बना देते हैं और इसके चारों तरफ भी सर्कल बना देते हैं. आप देखो खाली एंड के एन के एंड से कुछ डायरेक्शन समझ में आ रहा है. ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है. ये एस से पता चल रहा है ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है. आप देखो एन itself says that the direction is anti-clockwise, and S itself says that the direction is clockwise. Is this clockwise? Yes, Is sir. this anti-clockwise? Yes, This sir. is called clock rule. Means if someone asks you what is the direction of North Pole, you will say anti-clockwise. How? By the help of clock rule. You can write N in this way. In fact, I have written N, and in this way we observe that this N is showing the direction as anti-clockwise, and S, I have not done something very different. I have just used an arrow at the end of S and N, and in S we just observe that the direction is clockwise. So from now you should be you should keep this in your mind, that North Pole shows anti-clockwise direction and South Pole shows clockwise direction. Again I am coming to magnetic field pattern produced by a circular loop. So if this is circular loop, and I was saying that please, if this is N, however I will take another example as opposite, and if it is S, the right hand side should be kept on upper end and the left hand side should be kept on lower end. So, and the pattern is just like this, concentric circles in this way, but it will be in two different parts, first in upper part and second in lower part. This is, and here you have to find the direction of magnetic field pattern. So if you have to find the direction of magnetic field pattern, you need to take the help of clock rule. कई बार ऐसे भी सवाल पूछ दिया जाता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है, उसका डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप किस रूल से निकालते हैं. तो फर्स्ट में जो आपके स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, उसमें रूल था मैक्सवेल राइट हैंड थंब. और अगर आपसे सर्कुलर लूप का पूछ दिया जाए कि आप सर्कुलर लूप से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका जो डायरेक्शन आप निकालते हैं, तो उसमें आप क्लॉक रूल का हेल्प लेते हैं. क्लॉक रूल में आप ये दिखाते हैं कि नॉर्थ पोल अपने आप बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और साउथ पोल बता रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अब यहां पे नीचे आपको ले लेना है एस, नीचे एस लेना है, नो, नीचे आपको लेना है इस नॉर्थ पोल आप नीचे लेंगे और साउथ पोल आप ऊपर लेंगे. और नॉर्थ पोल आपको पता है कि बताता है डायरेक्शन कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज. तो या इनफैक्ट आप यहां पे करके भी देख सकते हो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब ऐसे जाएगा. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. यही है ना एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आ रहा है और इस तरीके से उल्टा. और ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज होगा. सर एक बार इसको सर्किट से कनेक्ट करके दिखा दीजिए ना. दिस इज क्लॉकवाइज. घड़ी ऐसे ही चलती है. हाँ जी, एक बार इसको सर्किट से कनेक्ट करके दिखा दीजिए. सर्किट से कनेक्ट करने का बस यही मतलब है ना कि यहां से आप वायर निकाल के और इसको दिखा देते हैं इस तरीके से, और यहां पे आप बना देते हैं. यही तो सर्किट है आपका. सेल लगा दिए, बैटरी लगा दिए, हो गया सर्किट से कनेक्ट. ये यहाँ पे ज्वाइंट नहीं रहेगा.
ये ऐसे रहेगा। हो गया। यस सर। और उसमें भी स्ट्रेट वाले में यही था। इसका उल्टा देखते हैं। उल्टा मतलब, उल्टा मतलब ये कि ये वाला जो है आपका, अगर ऐसा हो जाए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो पैटर्न जो होगा वो तो ऐसा ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम पैटर्न। लेकिन अब एन ऊपर जाएगा, मींस ऊपर अब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाना है, ऐसा। दिस इज, और साउथ जो है वो नीचे आ जाएगा और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ऐसा। साउथ इस तरीके से आप देखो, घड़ी ऐसी तरह से 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9 चलती है, और ये मैं उल्टा दिखा रहा हूं जिस इस तरीके से। समझ में आ रहा है? ये यस सारा सर। कुछ जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्लॉक रूल के हेल्प से कर रहे हैं। और क्लॉक रूल हमें यही बताता है कि कहीं पे भी देखो, आइसोलेटेड पोल होता नहीं है, लेकिन अगर एक ही मैग्नेट के दो पोल है तो नॉर्थ एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और साउथ एंड पर जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो व्हाट वी हैव डन टुडे, वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। सर एक फैक्टर्स बाकी है। क्या है? सर फैक्टर्स बाकी है ना, अरे अरे, सर्कुलर लूप। very important, that is that on what factors the strength of magnetic field pattern produced by a circular loop carrying current depends। अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट पास कर रहा है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट तो एकदम श्योर बात है कि ये करंट का डायरेक्टली प्रश्न होगा। इफ द करंट इज मोर, magnetic field will be stronger, and if the current is less, the magnetic field will be comparatively weak. Second, it will be directly proportional of number of turns। एक्चुअली अपकमिंग क्लासेस में हम लोग देखेंगे ये जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है, मतलब सर्कुलर दिख रहा है, ये सिंगल नहीं होता है, इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, और जितना ज्यादा आप टर्न्स बढ़ाइएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। ऐसे मतलब शॉप पे आप देखोगे वायर लपेटा, ढेर सारा लपेटा हुआ, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। थर्ड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, मींस रेडियस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और अगर रेडियस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। मतलब इस वाले में आप क्या कर रहे हैं कि अगर अगर आप ये दिखा रहे हैं कि ये एक इस तरीके का है, एक ये वाला सर्कुलर लूप है और एक ये वाला सर्कुलर लूप है, तो इस ए और बी में किसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा? सर ए में। ए में, क्योंकि यहां रेडियस ज्यादा है, रेडियस ए में होगा, ए में होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? यस सर, बी में होगा। इनवर्सली है ना, यस सर, इनवर्सली। यहां ज्यादा होगा। और इसी को अगर इस तरीके से बना दें या इस तरीके से, तो फिर यहां ज्यादा हो जाएगा। जितना रेडियस कम हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट इज, जितना रेडियस कम हो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और जितना रेडियस ज्यादा हो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। कई कई बार आपसे पूछ दिया जाता है कि आप अगर बढ़ाना चाहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट यू आर नॉट अलाउड टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक करेंट, तो फिर आप क्या करेंगे? आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे या फिर आप घटा देंगे रेडियस को, तो फिर अपने आप ये बढ़ जाएगा। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे। First topic was magnetic field pattern due to different shapes of current carrying conductor. Second one, magnetic field pattern due to straight. And please remember, current carrying must be written. अगर आप करंट ही पास नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस नहीं होगा। Third, on which factors the strength of magnetic field pattern produced by straight current carrying wire depends. Fourth one, magnetic field pattern due to circular loop carrying current.
Fifth one, on which factors its strength depends. And last one, what is clock rule. Here we have not written a rule which is used to find the direction of magnetic field in a straight current carrying wire, as we have discussed it earlier, known as Maxwell's Maxwell's right right hand hand thumb thumb. rule. So in first topic we had discussed that whenever we change the shape of current carrying conductor, the magnetic field pattern also gets changed, and we have to discuss three different shapes. The same thing we will study in class 12. Straight current carrying wire means magnetic field pattern produced by a straight current carrying wire. Second, magnetic field pattern produced by a circular loop carrying current. And third, magnetic field pattern produced by a solenoid carrying current. This shape is called solenoid. In detail we will discuss it in the next class. So next one, the magnetic field pattern produced by a straight current carrying wire. We discussed that whenever we take a अच्छा ये डिसाइड मैंने कैसा कर दिया कि कॉन्सेंट्रिक ही होगा, ट्रायंगुलर क्यों नहीं लिखा मैंने, मतलब ट्रायंगुलर क्यों नहीं बताया, या रेक्टेंगुलर क्यों नहीं, या कोई और शेप क्यों नहीं. ये बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट फाइंड किया गया. कैसे फाइंड किया गया, एक सर्किट से वायर को कनेक्ट कर दिया गया, करंट पास किया गया, और इसके चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स रख दिया गया, आयरन पाउडर, और फिर ये देखा गया कि इससे जो शेप प्रोड्यूस हो रहा है, और कंपास के हेल्प से उसका डायरेक्शन फाइंड किया गया. जो मैंने ये डायरेक्शन लिखा है, बनाया है, ये डायरेक्शन फाइंड किया गया कंपास के हेल्प से. और वही मतलब ये आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में कर सकते हैं. जब कभी आपका स्कूल खुले, आप एक कार्डबोर्ड पर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले लें, और फिर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक आयरन पाउडर और आयरन फाइलिंग्स रखें आप, तो आप देखेंगे इस तरीके का शेप प्रोड्यूस हो जाएगा. सेम थिंग वी डू इन द केस ऑफ सर्कुलर लूप, एंड सेम थिंग वी डू इन द केस ऑफ सोलेनॉइड. तो ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता दे रहा हूं या किसी साइंटिस्ट ने बता दिया और मैं आपको बता दे रहा हूं. आप ये एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कर सकते हैं. इफ you have a straight current carrying wire, the magnetic field pattern will be the shape of concentric circles, and whenever you change the direction of current, the direction of magnetic field also gets changed. However, the shape is same. However, the same law we use to find the direction, Maxwell's right hand thumb rule, means it is concentric circle. The direction is found by the help of Maxwell's right hand thumb rule, but the direction gets changed. Means if the direction of electric current means if the direction of current in the straight current carrying wire is in upward, then the magnetic field pattern, the direction of magnetic field pattern is anti-clockwise, and if the current, the direction of current is downward, the magnetic field pattern is clockwise. And you can do it by the help of your hand, just this. You don't need to mug it up. Next, we have discussed that the factors on which its strength depends. Its strength means actually we are talking about magnetic field, and the strength of magnetic field produced by a straight current carrying wire, and it depends on two factors. First factor is it is directly proportional to electric current, means when we increase the magnitude of electric current, the magnitude of magnetic field also gets increased, and if we decrease the intensity or the magnitude of electric current, the magnitude of magnetic field also gets decreased. सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है. आप जो प्रोड्यूस करा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को, करंट की वजह से करा रहे हो, तो जितना कम करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होगा, जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा. सेकंड वन, डिस्टेंस, जो कि कूलम्ब्स लॉ में हमने डिस्कस किया था. अब सीधी सी बात है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और एक आप यहाँ पे पॉइंट रख रहे हो, यहाँ पे आयरन नेल रख रहे हो, इसके मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर रहे हो, फील कर रहे हो, और एक बहुत दूर पे रख रहे हो और उससे फील कर रहे हो. डेफिनेटली दूर वाले में कम होगा. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो मैग्नेटिज्म है, वो वीक होता जाएगा. नेक्स्ट हम लोग सर्कुलर लूप के हेल्प से पढ़े, और सर्कुलर लूप में मैंने बताया कि ये दो पार्ट्स में होता है, और आप इस दो पार्ट्स को अपर और डाउन वाले में डिवाइड कर दो, और हमेशा याद रखो कि राइट हैंड साइड जो होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा. और उसके लिए हमने, और शेप जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होगा, लेकिन टू डिफरेंट पार्ट्स में. मींस कि एक वाला ऊपर वाला इस तरीके का शेप, ये एक्चुअली ज्वाइन किए हुए हैं सारे के सारे, और ये सारे इस वाले शेप में ज्वाइन किए हुए हैं. और इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्लॉक रूल यूज करते हैं. नॉर्थ पोल
not the letter N itself tells that the direction will be anti-clockwise, and the letter S itself tells that the direction will be clockwise. How it is, I have shown it here, that if you use an arrow at the ends of N, then it will say that this is the direction, and this is north, means this is anti-clockwise. And if we use the arrow at the ends of S, it will be in this direction, which is clockwise direction. And same we will use in this, means if in right there is S, we take it as upper, and if there is N, we take it in down. And in S, I have used this direction, means clockwise, and in N, I have used this direction, yeah, means anti-clockwise. The if we change this shape, means if we change the poles of the magnet, means if we take S as left hand side and north in right hand side, then N will go upper and S will go down. Here देखो आप कैसे चेंज किया मैंने, पहले S यहां था तो ऊपर गया S, अब N यहां पे है तो N ऊपर चला गया, और अब ऊपर का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और नीचे का डायरेक्शन जो होगा क्लॉकवाइज हो जाएगा. एंड लास्ट टॉपिक था कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं सर्कुलर लूप की वजह से, या सर्कुलर कोयल कहीं के पर होता है लूप की जगह पे, सर्कुलर कोयल की वजह से, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर, एवरीवन कैन राइट दिस, दैट इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही कम होगा. सेकंड, इट इज एब्सोल्यूट टू नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, नंबर ऑफ टर्न्स आप घटाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा. जैसे मैंने आपको बताया था इस वाले में, ये आप ढेर सारा वायर लपेटते हैं, जितना ज्यादा टर्न्स बढ़ाइएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. और थर्ड आपको बताइए रेडियस का इनवर्स होता है, मींस की रेडियस जितना ज्यादा कम होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, और जितना कम आप जितना ज्यादा आप रेडियस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा. आपसे डायग्राम वाला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है इस तरीके से, ये वाला है जिसका रेडियस है और एक ये वाला है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो किसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी वो प्रोड्यूस करके आपको दिखा देंगे, अलग अलग शेप इस तरीके से, ये वाला शेप प्रोड्यूस करके वो दिखा देंगे. तो आपको बताना होता है कि किसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मींस किसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और किसका वीक होगा. डेफिनेटली इसका रेडियस कम है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और इसका रेडियस ज्यादा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. तो आज के लिए हमारा इतना ही क्लास, इतना ही टॉपिक है. नेक्स्ट हम लोग सोलेनोइड शुरू करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट डिस्कस करेंगे. क्लियर? यस सर.